A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. Okay, my dear class 10 students, we are at the part 2 of this lesson, control and coordination. So in today's part, we are going to discuss about human nervous system and reflex action. So let's move ahead. So in today's class we are going to discuss about types of coordination, human nervous system, their types and parts, and reflex actions and reflex memes. So today's class is going to be super duper interesting, right? So let's move ahead. So first, what are the different types of coordination? In our body we have two types of coordination. एक होता है nervous coordination, another one is chemical coordination. देखो हमारे बॉडी में nerves होते हैं, right? विथ एडिशन, ठीक है, उनके साथ और क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन. व्हाट आर द केमिकल्स? लाइक हार्मोन्स. हार्मोन्स होते हैं ना, हमारे बॉडी को बैलेंस रखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट? ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम, स्पेशली इन ह्यूमन. सो व्हाट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम? इट हैज़ थ्री पार्ट्स. व्हाट आर दे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. तो देखो, यू कैन सी इन दिस डायग्राम बहुत सारे नर्व्स निकले हुए हैं. ओके, ब्रेन विद अलॉन्ग विद दिस नर्व्स मेक द नर्वस सिस्टम. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंटर है, पूरा मेन है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज द ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? नाउ नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल मीन्स, see, it consists of cranial nerves which are coming from brain, there are 12 pairs, and spinal nerves which are coming from spinal cord, 31 pairs. Okay, now moving to the next, autonomic nervous system. Okay, it consists of sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. My dear kids, sympathetic and parasympathetic are opposite in function. Like sympathetic क्या करेगा? It will control the size of pupil of my eye. ठीक है, क्या होता है ना, जब लाइट गिरती है, ब्राइट लाइट हमारे आंखों में आती है, सो द साइज ऑफ प्यूपिल यूज टू इंक्रीज, राइट? सो लाइक दैट. ओके, लाइक दैट. सो सिंपैथेटिक व्हाट इट विल डू? इट विल इंक्रीज. पैरासिम्पैथेटिक it will try to decrease. Okay, it will try to normalize. So they are opposite in function, right? Okay, now moving to the next. See, different parts of the brain. Forebrain, midbrain, hind. Fore means front, okay, mid means middle, hind means the back portion. So see, the bigger part, okay, the larger part is called as the cerebrum. Okay, then this is the cranial skull which protects the brain from any damage, and the middle one is the midbrain, and here the frontal part is called as the forebrain, right? And hypothalamus, okay, here pituitary gland is here, and pons and medulla oblongata, they together form hindbrain. Okay, and this is cerebellum. This is cerebrum, this is cerebellum. Okay, and this is the spinal cord. Brum, broom. Okay, vroom vroom. Okay, just remember, फर्स्ट हमने गाड़ी स्टार्ट किया सेरिब्रम से, जो ऊपर वाला पार्ट है. आफ्टर दैट हम एक ट्रैफिक में आके रुके और वहाँ पे हमने बेल दबाया, सेरिबेलम. तो फर्स्ट आता है सेरिब्रम, देन इन द डाउनवर्ड, ओके, लास्ट पोर्शन में क्या होता है? सेरिबेलम. ओके, ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. सी, पार्ट्स क्या क्या है और फंक्शन क्या क्या है. फर्स्ट वन इज फोरब्रेन. फोरब्रेन इज हैविंग सर्टेन पार्ट्स. Cerebrum, cerebral hemisphere, olfactory lobes and diencephalon. तो cerebrum का फंक्शन क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है ना ब्रेन का, सो इट हेल्प्स इन थिंकिंग, राइट? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शन, राइट? एंड ऑल्फैक्टरी हेमिस्फीयर यानी कि बेटा ये जो हमने डायग्राम देखा ना, लेट मी शो यू. ये क्या है? ये हाफ पोर्शन का डायग्राम हमें दिखा रहा है और दूसरा हाफ क्या है? नेक्स्ट साइड में है. ओके, सो and olfactory lobes, smell. Olfactory means smell, ठीक है, center of smell. and diencephalon has center of hunger and thirst, जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है. okay, they control. then midbrain, it controls reflex movement, about which we are going to discuss today, of the neck, head, trunk in response to visual and auditory stimuli.
स्टिमुली क्या होता है, बाहर से जो हमें कुछ भी एक्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिएक्ट करेंगे. इट कंट्रोल्स एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स. आई के मसल्स जब उसके प्यूपिल के साइज को चेंज करना, आई लेंस के साइज को चेंज करना, इट everything is controlled by midbrain. Then hindbrain, it is having pons, cerebellum and medulla. Pons, they regulate respiration, relays information between cerebellum and cerebrum. cerebrum से cerebellum तक क्या करेंगे, ये मैसेज पहुंचाएंगे, राइट. cerebellum, इसका काम क्या है, it maintains posture. जैसे कि see, I am sitting, I am having different posture. It is maintaining when I will be walking, that one is having different posture. जब चलते हैं सीधे चलते हैं, बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं, फिर नीचे झुकते हैं. So everything, the posture is maintained by cerebellum. And medulla, medulla का काम क्या है, controls involuntary action. जैसे breathing, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नो ना, हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इनवॉलंटरी, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्सेस सच एज swallowing, coughing, vomiting, ये सारे कौन कंट्रोल करते हैं, मेड्यूला. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर कंडक्टिंग इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से मैसेज लेके दूसरे पार्ट में पहुंचेगा, दूसरे पार्ट से ब्रेन तक, ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, राइट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, इट्स फनी, राइट. सी, जैसे कि यहाँ पे देखो, यू कैन लुक इन दिस वीडियो. जैसे कि उसे गर्म कुछ चीज़ पकड़ा दिया तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. इट मीन्स रिफ्लेक्स, मतलब सडन कोई चेंज होने से हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है. ठीक है, जैसे कि मच्छर काट लिया, हम क्या करते हैं, सडन करके उसे मारते हैं. तो क्या होता है, वो सडन रिएक्शन होता है ना हमारा, दैट इज कॉल्ड. जैसे कि ठंड लग रही है तो हम क्या, शिवर होता है, सडन होता है. रिफ्लेक्स इज ए वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, अचानक से कोई चेंज हुआ तो क्या होता है, हमारी बॉडी सडन रिएक्ट करती है. उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, सो वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. हमें मतलब अचानक से ही रिएक्ट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि, मतलब हम सोचते नहीं उसके बारे में कि क्या कंट्रोल करना है, क्या करना है. ओके, सी, रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे कि लाइट अचानक से आपके आंख में गिरी, तेज लाइट, तो क्या होता है, आप आंख बंद कर लेते हो, रिफ्लेक्स. जैसे कि यहाँ पे देखो इस पिक्चर में ये लड़की क्या कर रही है, गरम कॉफ़ी, ठीक है, पी लेती है, तो अचानक से क्या हम छोड़ देते हैं ना, क्योंकि इट्स रिफ्लेक्स. सो नाउ इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्स, इनवॉल्यूंटरी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते रिफ्लेक्स को. सो डिफरेंस क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन आर एक्शंस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल. हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं करते, जैसे सांस लेना. ठीक है, ये सडन नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूस. रिफ्लेक्स एक्शन लेकिन क्या होता है, इट इज़ अ सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट. अचानक से कुछ आ गया तो क्या होता है, हम रिफ्लेक्स करते हैं. देन दे आर कनेक्टेड विथ फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स. बॉडी के अंदर ही कुछ, ये क्या होता है, जैसे कि ब्रीदिंग, बॉडी के अंदर के पार्ट्स के साथ इट इज़ कनेक्टेड. बट रिफ्लेक्स एक्शन बाहर से कुछ स्टिमुली, बाहर से कुछ एक्शन होने से हम रिएक्ट करते हैं. एग्जाम्पल जैसे इनवॉल्यूंटरी का ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट. एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, क्लोजिंग ऑफ द आई व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड, राइट. जैसे ब्राइट लाइट के तो हम आंख बंद कर लेते हैं. एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑफ हाइंडब्रेन. इनवॉल्यूंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, जनरली स्पाइनल कॉर्ड, राइट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. सी, नेचुरल रिफ्लेक्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें. कैसे अलग होते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे, इवान पैब्लो. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने कुत्ते के साथ. कैसे, पहले क्या किया उन्होंने, अपने कुत्ते के सामने लाके उन्होंने क्या किया, खाना रख दिया. सो जैसे कि हम भी टेस्टी खाना देखते हैं तो क्या मुंह में पानी आ जाता है ना. सो द डॉगी स्टार्टेड वाटरिंग. ओके, वाटरिंग इज माउथ. सो देखो यहाँ पे जैसे कि ये अनकंडीशनड है, ठीक है, ये नेचुरल स्टिमुलस है, तो उसको दिखा फूड तो क्या उसके माउथ वाटरिंग होने लगी. फिर उन्होंने क्या किया, खाना नहीं दिया, बस विसिल दिया. ठीक है, फिर क्या हुआ, डॉगी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसे क्या पता था. फिर उन्होंने क्या किया, खाना देने से पहले ही उन्होंने विसिल किया, फिर खाना दिया. तो ऐसे लगातार करने से डॉगी को समझ में आ गया कि क्या है, जब विसिल बजेगा तब उसे खाना मिलेगा. इट मीन्स कंडीशन आपने अप्लाई कर लिया. देन आफ्टर दैट जब विसिल बजता था उस डॉगी ने क्या किया, इट स्टार्टेड वाटरिंग. ओके, इट्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग. समझ में आया. फर्स्ट क्या था, सिर्फ खाना दिया तो इट वॉज वाटरिंग, इट्स नेचुरल. ठीक है, खाना देखते हैं तो वाटरिंग, इट स्टार्टेड वाटरिंग. ओके, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ विसिल बजाया, नो रिस्पॉन्स, उसे पता ही नहीं है क्या है. फिर हमने कंडीशन अप्लाई किया कि पहले विसिल बजाएंगे फिर उसे खाना देंगे, पहले विसिल बजाएंगे फिर उसे खाना देंगे. तो कंटिन्यूसली ऐसा करने के बाद
एक बार उन्होंने ऐसा देखा, ऐसा कंडीशन है कि पहले जब उन्होंने विसिल फूका तभी उसके बाद ही इट स्टार्टेड वाटरिंग, ओके, इट्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। फिर क्या हुआ, तो उसे पता चल गया कि विसिल बजेगा तो खाना आएगा, राइट। इसे बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। इट मीन्स कि क्या, धीरे धीरे वी यूज टू लर्न। सो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिफ्लेक्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्स, दे आर इनबॉर्न रिफ्लेक्स। कौन सा, नेचुरल वाला बॉर्न से होता है, और कंडीशनल का होता है इनहेरिट नहीं होता, हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। दे आर इनहेरिटेड शोन फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से होता है नेचुरल रिफ्लेक्स। लेकिन कंडीशन रिफ्लेक्स क्या, हम धीरे धीरे लाइफ के साथ, लाइफ टाइम प्रोसेस, लाइफ के साथ हम सीखते जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स एंड आर बेसिकली सेम। नेचुरल रिफ्लेक्स जनरली सेम होता है, जैसे कि हम अगर फायर को टच करते हैं तो हर कोई, किसी को भी आप दो, अगर गर्म चीज़ को हम टच करते हैं तो अचानक से हाथ उठा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग इन अटेंशन व्हेन यू हियर नेशनल एंथम, हमें पता है नेशनल एंथम जब बजेगा, ये हमने लर्न किया है, हमें अचानक से खड़ा होना है। एक एग्जाम्पल दूँ और एक फ़नी वाला। कंडीशन क्या होता है ना, आप धीरे धीरे सीखते हो। जैसे कि आपको पता है, आप मम्मी के साथ मार्केट गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा चाहिए लेकिन मम्मी नहीं दिला रहे, तो तब आप क्या करते हो, रोना धोना चालू कर देते हो। क्या आपको पता है कि मैं कितना टाइम रोऊं, रोना आता नहीं है लेकिन रोते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं रोऊंगा तभी क्या करेगी, मम्मी मुझे चॉकलेट दिला देगी, ठीक है। तो हमने क्या, ये सीखा है, ठीक है, हमने प्रैक्टिस करने के बाद हमने सीख लिया। बार बार पहली बार ऐसा होगा, आपने रो दिया होगा, मम्मी ने दिला दिया होगा, तो आपने जान लिया कि मैं रोऊंगा तो मम्मी ला के देगी। सो यू आर लर्निंग इट, ओके। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है। सो देखो, मेनली बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है, एक क्या होता है, रिसीवर। लुक, फिंगर, जैसे कि कैंडल, ठीक है, मोमबत्ती यहाँ पे जल रही है, कैंडल, हमने हाथ लगाया तो क्या हाथ को गर्म लगा, ठीक है, रिसीवर हुआ ये। फिर क्या हुआ, हम अचानक से उठा लेते हैं। क्यों उठाते हैं, कैसे काम करता है, देखो ये रिसीवर है। फिर क्या होता है, रिसीवर से ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये जाएगा कहाँ पे, इसको सेंसोरी मोटर बोला जाता है, जो लेके जाता है, ठीक है। तो क्या करेगी, ये सेंसोरी होता है, सेंसोरी नर्व, ये जाके किसके पास पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स आएगा किसके पास, मोटर न्यूरॉन के साथ। समझ में आया, रिसीवर फिंगर ने रिसीव किया, फिर उसने भेजा किसके, इट सेंट द मैसेज विद द हेल्प ऑफ सेंसोरी मोटर, ठीक है, सेंसोरी न्यूरॉन, सेंसोरी को भेजा। फिर सेंसोरी के बाद क्या, धड़ाम से ही अचानक से विद सडन मूवमेंट मोटर न्यूरॉन से रिएक्शन आया किसके पास, मसल के पास, उसको इफेक्टर बोला जाता है, जो एक्शन करेगा। तो जैसे ही हमने छुआ, अचानक से कर लिया, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अंडरस्टूड। इसका एक लॉन्ग मैकेनिज्म भी होता है। मान लो कि अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना होता तो हम क्या करते, छूते, न गरम लगता, फिर वो पहुंचता ब्रेन के पास, ब्रेन सोचता, फिर वो मैसेज भेजता, ऐसे होते होते तब तक हाथ जल गया होता। लेकिन क्या है, ये विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये शॉर्टेस्ट पाथवे होता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। सो कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पूरा होता है जो सिस्टम, इसे रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। पहला होता है रिसेप्टर, वो क्या करेगा, रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, जनरेट्स इम्पल्स, ये होता है रिसेप्टर, जो हमने आर्क को छुआ तो हमारा फिंगर हुआ रिसेप्टर। सेंसोरी न्यूरॉन क्या होता है, जो मैसेज लेके जाता है, कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इंटरन्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, वो जाके पहुंच जाता है स्पाइनल कॉर्ड के, और बीच में जो लेते हुए जाते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इंटरन्यूरॉन्स। एसोसिएशन न्यूरॉन्स प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट्स रेस्पॉन्स, ठीक है, वो लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर, फिर वो रिएक्शन को लेके आता है कौन, मोटर न्यूरॉन। इफेक्टर न्यूरॉन क्या, इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, वो इसे हटा लेगा, ठीक है, रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एफरेंट न्यूरॉन एंड सोच द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स, ठीक है। जैसे हमने छुआ, रिसेप्टर ने छुआ, फिर क्या हुआ, सेंसोरी न्यूरॉन ले गया, फिर मोटर न्यूरॉन वापस है, तो अचानक से हमने छोड़ दिया। समझ में आया, ओके। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। देखो, रिफ्लेक्स आर्क इज द शॉर्टेस्ट रूट, ये शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है, वरना क्या होता है, यहाँ से जाके ब्रेन पे पहुँचता बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता ना। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द शॉर्टेस्ट रूट दैट एन इम्पल्स माइट टेक फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर, इम्पल्स जाएगा रिसेप्टर से इफेक्टर तक टू एग्जिबिट ए सडन रेस्पॉन्स, अचानक से रेस्पॉन्स देना है, उसे रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। सो फनी रिफ्लेक्स क्या क्या है, देखो, कभी गर्म खाना खाया, मैंने खाया है, ये जो आलू चॉप होता है ना, उड़ीसा में बहुत फेमस है, स्पेशली बालेश्वर में तो बहुत ही फेमस है।
तो आलू चप गर्मा गर्म ना बहुत पसंद है। हम क्या करते हैं ना, आलू चप गर्मा गर्म था, मैंने एक बार मुंह में डाल दिया, बहुत गर्म था। तो ये जो आदमी जैसे कर रहा है ना, मैंने वैसे किया, पूरा मतलब पूरा ना, पूरा गर्मी मतलब इतना लगा मुझे, लगा मेरा मुंह तो पूरा जल गया था। वैसे ही देखो, जैसे ये बोला गया है, व्हेन योर फूड इज स्कॉचिंग हॉट बट यू आर हंग्री। इस लड़की को देखो, पूरा मुंह में डाल दिया, धुआं निकल रहा है, लेकिन ये आइसक्रीम है फिलहाल। लेकिन ऐसा होता है ना, तो क्या होता है, ये होता है फनी रिफ्लेक्स। ठीक है, हम चाह कर भी निकाल नहीं पाते, टेस्टी है, खाने का भी मन है, तो क्या कर रहे हैं, वो क्या मुंह में रख के ही वहाँ पे ठंडे होने के लिए हम देख रहे हैं। राइट, फनी, राइट, ओके। सो see, our reaction to a situation literally has the power to change the situation itself. तो कोई भी सिचुएशन आप कैसे उसमें रिएक्ट करते हो, इट डिपेंड्स, राइट। सो आप जब भी रिएक्ट करते हो कोई भी सिचुएशन, आपको इवेंचुअली थिंक कर, कूल माइंड में आपको थिंक करना है, सोचना है, उसके बाद यू हैव टू रिएक्ट। ओके, सो आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर। ओके, so with this I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy, and thank you.